والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. I would like to thank Faculty of English Department. I have witnessed how much effort they put in planning our schedules and activities. Being the core part of this department, it is obligatory for us to know about the structure and strategies going on in this department to facilitate us. And for that, the Faculty of English Department has prepared detailed assessment report under the supervision of our very honorable SOD, Ma'am Ramsha. It will help us to look deeper into the functional behavior of our department. So buckle up yourselves to enjoy the roller coaster ride on the insights of English department with our respectable faculty. For that, I humbly request Ma'am Ramsha to take over the desk and share her hard work with her beloved students. Put your hands together for Head of Department, Ma'am Ramsha Zafar. I hope you are doing well. Sorry for the inconvenience. थोड़ा सा डिले हो गया ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट्स. अच्छा बेटा, द मेन एम ऑफ this seminar is to provide you with the insights of the strategies and the structure and how your department is functioning to give you the best. ठीक है, through faculty, management, obviously the head, everybody is working equally. So we have prepared a self-assessment report of 2023. Definitely you are also the part as the 6th semester, 4th or 8th semester. You guys are a part of this department. So we felt like that it is very, very necessary to share each and everything with our beloved students so that they can also know that how much effort we are putting as a faculty, as in head, as a management team. Ms. Aksa has definitely worked harder and harder in preparing this. Ms. Humaira, Ms. Rahma, they all have worked equally. Alhamdulillah, and finally we are able to share this a very masterpiece of our department with you, and these informations are basically not being shared with students sometimes, that this is quite a confidential thing, but we decided that as being a part of this institute and this department, this is your right to know each and everything. Okay? So let's get started. I'll not take much of your time. So first of all, let me tell you that we have made a quality enhancement cell of KM. Lucky that you have got such experienced faculty. और आपको तो हम बार बार डेलिब्रेटली कहते हैं कि बेटा आएँ और हम हमारे पास थीसिस करें, रिसर्च वर्क करें, ताकि आप स्किल्ड यंग लिंग्विस्ट बन सकें. ठीक है, लिटरेचर पे कहाँ पे आप कर सकते हैं. ठीक है, हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स बेटा क्या क्या थे, वो ये थे कि हम एग्जामिन कर सकें डिटेल को, जो प्रिंसिपल्स हमारी फील्ड को अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की चला रहे हैं. जैसे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स और लिंग्विस्टिक्स पढ़ाया जाता है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, साइको लिंग्विस्टिक्स, ये सब किस चीज़ की ब्रांचेस है बेटा? ऑब्वियसली लिंग्विस्टिक्स की. इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स जब आप पढ़ते हो तो आप फर्दर ब्रांचेस को पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि इंग्लिश इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू इंग्लिश ओनली, इट हैज़ अ ह्यूज स्कोप विद अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. हम सोशियोलॉजी को भी टच कर रहे हैं, हम इकोनॉमी को भी टच कर रहे हैं, हम साइकोलॉजी को भी टच कर रहे हैं. तो हमारे आउटकम्स यही थे कि हमारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के साथ ही इन टच ना रहे और आउट ऑफ वर्ड के साथ बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, उसका कट ऑफ ना हो जाए. हमने कोशिश की कि हर सब्जेक्ट के साथ उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए. ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा एम था वो ये था कि आपको हम डेटा इंटरप्रेट करना सिखाएं और फॉर्म्यूलेट करना भी सिखाएं.
इंटरप्रेट मतलब जितने भी हमने एनालिसिस वाले सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स के भी और लिटरेचर के भी, आपको डेटा को, लिटरेचर को आपको इंटरप्रेट करना है, एवेलुएट करना है, एनालाइज करना है। उसके बाद फॉर्मुलेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप सीखते हो तो जब तक आप उसको करके नहीं देखते हो आप बेहतरीन तरीके से नहीं सीख सकते हो। आप सीख ज़रूर रहे हो लेकिन जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, अपना डेटा फॉर्मुलेट नहीं करोगे, एंड फॉर दैट यू नीड टू गो फॉर थीसिस और रिसर्च फॉर, ठीक हो गया। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम वॉज कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन वाया वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन एक्सप्रेशन, ये हम आपका बेहतर से बेहतरीन कर सकें। Assalamu alaikum, my dear faculty, my respectable faculty members and my dear students. How are you? Okay, today topic of my presentation is curriculum design and computing facilities. Curriculum design में जो लोग हमें फैसिलिटेट करते हैं, जो हेल्प आउट करते हैं और फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें जो लोग इंक्लूड हैं दे आर, इसमें आ जाती है फैकल्टी मेंबर्स आ जाती हैं जो कि अपनी सजेशन जो है वो सेंड करते हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को, और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के और सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो अपनी सजेशन जो है वो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को सेंड करते हैं, और उसके बाद ही आपका जो सिलेबस है, करिकुलम जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है। इसको डिज़ाइन करने में इसमें डिसाइड किया जाता है कि कितने क्रेडिट आवर्स जो है वो आपके होने चाहिए। आपका ये जो BS प्रोग्राम है इसमें 8 सेमेस्टर है, और 8 सेमेस्टर्स में से हर सेमेस्टर के अंदर ऑलमोस्ट 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, बट कुछ सेमेस्टर ऐसे हैं जिसमें 7 सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये टोटल 132 क्रेडिट आवर्स बनते हैं। अब क्रेडिट आवर्स आप हमेशा सुनते हैं कि हमारे सब्जेक्ट जो है वो 3 क्रेडिट आवर्स का होता है। तो क्रेडिट आवर्स का मतलब क्या होता है? तो 1 क्रेडिट आवर इज इक्वल टू 1 आवर, यानी कि वीक के अंदर हमें कितने क्रेडिट आवर्स को कंप्लीट करना होता है। तो टोटल हमारे सारे सब्जेक्ट्स के जो क्रेडिट आवर्स बनते हैं वो हैं 132 क्रेडिट आवर्स, और लैब्स के लिए 1 आवर मीन्स 2 आवर्स होते हैं। अगर आपका कोई लैब का सब्जेक्ट हो, जैसे कि कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ जो है वो, उसमें कंप्यूटिंग भी आपका जो है कॉल का सब्जेक्ट है, अगर उसके लिए हम लैब की भी फैसिलिटी आपके साथ करें तो वो 2 आवर्स पर वीक जो है वो उसका हमें लेक्चर जो है वो कंडक्ट करना होगा। Assalamu alaikum and good evening, respected head of department and faculty members and my dear students. So today I will be telling you about student support and advising and control process. इसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्टूडेंट सपोर्ट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हमारे डिपार्टमेंट ने जो है वो प्रोवाइड की हैं, और उसके बाद जो प्रोसेस कंट्रोल है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह जो है वो आप यहाँ पर क्या एडमिशन पॉलिसी है हमारी इंग्लिश डिपार्टमेंट के लिए, किस तरह जो है वो आपकी टीचर की रिक्रूटमेंट होती है। ये तमाम चीज़ें जो है मैं आज अपनी प्रेजेंटेशन में कवर करूँगी। तो सबसे पहले ये है कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ हो रहे हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के अंदर, ये अपने फिक्स टाइम के अंदर स्टार्ट होते हैं और अपने फिक्स स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जो ये फिनिश होते हैं। उसके बाद जो चीज़ हमने प्रोवाइड की है स्टूडेंट्स और टीचर का इंटरेक्शन, वो ये है कि आवर स्टूडेंट्स जो इंटरेक्शन है हमारे स्टूडेंट्स और टीचर का, वो किसी भी टाइम जो है वो आप अपने टीचर्स के पास जा सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी इशू रिगार्डिंग योर एकेडमिक और योर प्रोफेशनल इशू जो भी आपको फेस कर रहे हैं, आप अपने टीचर्स के पास जाकर जो है वो उनसे हेल्प आउट ले सकते हैं। उसके बाद जब भी आपका यहाँ एडमिशन का प्रोसेस सारा कंप्लीट होता है एंड यू हैव अ सेमिनार, तो उस सेमिनार में जो है वो हम आपको डिफरेंट चीज़ें बताते हैं, जिसमें डिग्री सिस्टम के बारे में हम आपको बताते हैं। आफ्टर दैट सेमेस्टर सिस्टम में जो है चीज़ें जो हम कवर करते हैं बेसिकली वो ये होती हैं कि हम आपको बताते हैं कि आया जो डिग्री आप चूज़ कर रहे हैं वो सेमेस्टर सिस्टम है या एनुअल सिस्टम है। आफ्टर दैट ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल कि आपकी जो BS इंग्लिश में एडमिशन से पहले आपको कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस आपकी होंगी तो भी जो है आप एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए। कोर्स रजिस्ट्रेशन कि किस तरह जो है वो आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एडमिशन ऑफिस में सबमिट करवाते हैं। आफ्टर दैट आप एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो पे करते हैं, आफ्टर दैट आप GC यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जो है वो The other two criterion that is in self-assessment report, that is based on faculty, and the other one is on institutional facility. Okay, first we are going to talk about faculty, जिसमें we have faculty distribution by program कि हर program के अंदर हर requirements के according faculty को distribute किया जाता है। In English we have 49 courses, 49 subjects basically in English department.
For that purpose, we have 5 highly qualified teachers in our department, in which we have Miss Ramsha Zabta. She is MPhil in literature, and the other one we have Miss Nosheen Kawal. Then we have Miss Humaira and Miss Raima and myself as well. Then the other thing is कि for that purpose कि जी ये जो फैकल्टी असाइन की जाती है आप लोगों को पढ़ाने के लिए and all that, उसके लिए एक प्रोसेस होता है कि परमानेंट फैकल्टी को हायर करने के लिए जो HCC की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि देयर इज़ अ CV या रिज्यूमे जो कि बनाई जाती है, और वो यहाँ पर मेंशन है. आई विल शेयर दैट रिज्यूम विद यू एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर. उसके अलावा जो है फुल टाइम फैकल्टी जो है वो आप लोगों के पास होती है. सफिशिएंट टाइम होता है हमारे पास कि हम स्कॉलरली एक्टिविटीज़ को और एकेडमिक एक्टिविटीज़ को साथ लेकर चलें. जैसे कि आप लोगों की फर्स्ट टाइम में क्लासेस होती हैं, देन वी हैव द अदर टाइम कि जिसमें वर्कशॉप, सेमिनार्स और दूसरी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाई जाती हैं. आप लोगों की ही एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, आपको ग्रूम करने के लिए जो है ये एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं. एंड दिस इज़ द थिंग कि सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट भी इज़ वन ऑफ दैट थिंग कि जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपके लिए क्या इवेलुएट किया जा रहा है, आपके लिए फर्दर क्या प्रोसीजर्स चल रहे हैं एंड ऑल दैट. देन इन दिस प्रोग्राम एंड प्रोसेसेस इन प्लेस फॉर फैकल्टी मोटिवेशन. अब डेफिनेटली वी आर इन अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, वेरी डेवलप्ड इंस्टीट्यूट, जहाँ पर फैकल्टी के लिए बहुत सी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो कि हमें एक अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट में. जब भी एक इंस्टीट्यूशन जो है वो रन कर रहा होता है तो उसके पीछे सब लोगों की एफर्ट होती है, किसी एक इंडिविजुअल का काम नहीं होता. इट स्टार्ट फ्रॉम द डायरेक्टर एंड देन इट कम्स डाउन हायरार्की वाइज. तो जहाँ पे स्ट्रेंथ्स होती हैं, हमारे प्लस पॉइंट्स होते हैं, वी हैव अपॉर्चुनिटीज, देयर इज ऑलवेज वीकनेसेस आल्सो. आई नो कि बच्चों को गेम्स के सेटिस्फाई करना इज सच अ टास्क कि हमारी सारी ज़िंदगी लग जाएगी और आप लोग को सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन ये है कि स्टिल आई हैव गैदर्ड सम इन्फॉर्मेशन जो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी सेटिस्फेक्शन में. हमारा जो BS का प्रोग्राम है इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव थी बेटा ये था कि हम बच्चों को नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के काबिल बना सकें. स्टूडेंट्स को इतना नॉलेज एक्वायर हो सके कि वो जाके डिफरेंट जॉनर्स ऑफ लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स के ब्रांचेस को अच्छे से फर्दर जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ एक्सप्लेन कर सके. आपको हाईली एजुकेशनल, हाईली क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस टीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं. लेकिन जहाँ पे हमें ये स्ट्रेंथ्स नज़र आती हैं अपने डिपार्टमेंट में, वहाँ पे हमारी जो वीकनेसेस एज अ फैकल्टी मेंबर हमें जो फेस करनी पड़ती हैं वो है स्टूडेंट्स आर नॉट रेगुलर.